Very nice. So straight line means the particle is moving on a straight line with a constant velocity. Even if there is no force, that's fine. It will be, there is no force, it's still fine. The body will continue moving in a straight line. Straight line के लिए हमें velocity चाहिए, and that velocity is linear velocity. Particle may continue for infinite long time जब तक कि हम बाहर से कोई force नहीं लगा. But suppose if the same particle wants to move on a circle. So uniform circular motion is just one classification. पहले हम एक general बात करते हैं. अगर suppose a particle has to move on a circle, the same particle now is trying to move on a circular path. So थोड़ा सा feel करिएगा इसको. T is equal to 0 पे suppose ये position A पर है, and इसके पास velocity है V. If it is free to move, as Vihan pointed out, if the particle was free to move, तो ये straight line में जाता, मतलब A से पहुंच गया suppose B पे after time T. Like here, it started from A, it reached point B after a certain time is equal to 0. But when this particle is moving on a circle, it is not at the straight line, it is actually here on this circular path B. अगर ये particle free होता move करने के लिए, then it would have been moving along the straight line. ये A से B पे पहुंच जाता after time T. Now it is moving on a circle, so that means this particle is pulled towards the center. ये समझ आ रहा है? B पे होता, अगर फ्री होता मूव करने के लिए, अभी सर्कल पे मूव कर रहा है, मींस देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज पुलिंग इट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. सिद्धि, रिद्धि, Yes, sir. you know, just checking. You understood this concept? Yes. We are trying to find out the basic difference between translational motion and the motion on a circle, which is also a part of rotational motion. अगर ये पार्टिकल फ्री हो मूव करने के लिए, तो कुछ टाइम में A से B और B से C पे पहुंच जाता. When there is no force is required, it will continue moving along the same line, the same direction. If this particle is not moving on a circle, this particle is moving on this circle, not moving on a straight line, it is moving on a circular path. That means from its position that would have been in the absence of force, it is pulled toward the center. P को किसी ने खींच के B dash center पे surface पे आ गया, and this is also pulled toward the center. So that means any particle which is moving on a circle must have a force directed toward the center. बिना इस force के particle को circle पे move करना possible नहीं, right? ये थोड़ी समझ में आ रही feeling? Definition तो हम लिख लेंगे बाद में, थोड़ा feel करने वाली बात है. When the particle was free to move on a straight line, t time के बाद ये ऐसे कुछ point B और C पे पहुंचता है without any force. Now, if it is moving on a circle, means there must be some force that is pulling this particle. सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना? इसको हम centripetal force बोलते हैं. Yes, the name of any such force which is directed toward the center will be called centripetal force. और ये कोई भी force हो सकता है, किसी भी टाइप का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है. पहले ये समझ में आ गया कि सर्कल पे मूव करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? ये पार्टिकल हमेशा बार-बार सेंटर की तरफ फॉल होता रहता है, सेंटर की तरफ जाता रहता है. इट मूव्स टुवर्ड द सेंटर रादर देन सर वो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा? तो वही तो बोला सर, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल. ऐसे किसी भी फोर्स को हम बोलते हैं जो सेंटर की तरफ लगेगा. बट सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत क्यों है, अभी हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाई इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड? बिकॉज every time the particle is moving on a circle means it is falling toward the center. It is falling from B to B dash, or it is falling from C to C dash accordingly, right? So if a particle is on a circle, that means in comparison to the straight line path, it is falling towards the center of the circle. Therefore it requires a force that must be directed towards the center. So सर्कल पे मूव करने के लिए the primary condition is कि एक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो उस सर्कल के सेंटर की तरफ लगा हो. कबीर, Yes, sir. you understood this part? Yes, sir. Okay. So to move along the circle, we require a force directed towards the center. उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, that we will derive. But the condition is
Without a force toward the center, a particle cannot move on a circular path. जैसे एग्जांपल, अगर हम किसी स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके if we are rotating in a circle, then there is a tension force from the string which provides the required centripetal force. Particle of mass m attached with this string. The string is rotating, so because of the tension from the string, the tension provides the centripetal force. So circular motion का मतलब क्या हुआ? When a particle moves on a circular path, it's called circular motion, right? So there are two different types of circular motion. First, it is called uniform circular motion when a particle. So पहले डिस्कशन से ये प्रूव हो रहा है that every time particle moves a circle, that means it has a net displacement toward the center. A force is required. A force must be directed toward the center of the circle. Towards the center of the circle. For any particle or any body to move on a circle. For any particle to move on a circular path. Okay. Is it okay or should I teach on board? Jan, is this fine? सर दोनों ही ठीक है, दोनों में बेटर क्या है? ऐसे ही पढ़ा लो सर, वो बोर्ड में फिर टाइम लगेगा। अच्छा, बोर्ड में टाइम लगता है, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे कर लेते हैं, मे बी we'll keep it mixed. Tejasvi, you understood this? Anika? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, so this is a necessary and must condition. अगर सर्कल के सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस फोर्स का नाम है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स इन द सिस्टम। उनमें से जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। जैसे फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये तो एक कोई पार्टिकल है, हमने स्ट्रिंग में इसको बना, स्ट्रिंग के साथ इसको बांध के उसको मूव कर रहे हैं, then tension in the string provides that force. So ये जो force था, a force must be directed toward the center of the circle for any particle to move on a circle, and this force is called as centripetal force. थोड़े मोशन के पहले लॉजिक समझ लेते हैं, फिजिक्स समझ लेते हैं, then we will do the derivation and all the formulas together. स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल को फोर्स नहीं चाहिए because it is not moving along any direction, it is just continuing on the same path by the property of inertia. but जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की या रोटेशन या फिर रोटेशनल मोशन की, then it is basically every time particle is falling toward the center, so there must be a force जो उसको सेंटर की तरफ पुल कर लेता है, and that force is called centripetal force, always directed toward the center. सेंट्रिपिटल फोर्स के एग्जांपल, जब किसी स्ट्रिंग के को हम स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके मूव करते हैं, देन टेंशन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसमें को दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नीचे इसका वेट भी लग रहा होगा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ T माइनस mg। Tension the string provides required centripetal force. तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, और ये रिक्वायरमेंट कौन डिसाइड कर रहा है? दिस रिक्वायरमेंट डिसाइड बाय द स्पीड एंड द रेडियस। ज्यादा स्पीड से मूव करना है तो ज्यादा आपको फोर्स चाहिए, देयर मस्ट बी मोर फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सर ये जो mg फोर्स है, यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पार्ट प्ले करेगा क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट T mg से बड़ा होना चाहिए, T माइनस mg, दिस शुड बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ T लग रहा है, बाहर की तरफ mg लग रहा है, और mg सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्ट कर रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो,
डोंट गेट कंफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे नहीं, या तो सेंट्रीपिटल होगा या सेंट्रीफ्यूगल होगा, दोनों साथ में नहीं होते। तो आप कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स पेयर्स नहीं है? Yes, they are not explanation थे। ये भी पढ़ा है किसी? हाँ, कल क्लास में कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट, ए प्रभु, और वो पेयर्स हैं। इक्वल और अपोजिट होते हैं, but they do not act at the same time. अच्छा, दे आर नॉट पेयर्स। बचपन में देश खराब कर देते हैं, बड़े में हमें सुधारना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। सर जो कल सुना ही है पढ़ा अच्छा, है ये तो, कल। जो सुना है वो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आप सच जान लो। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास भी, यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है? ये मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट, ये आपने कैसे पूछ लिया? What's the difference between circular motion and rotational motion? Hint. सर मैं आंसर करूं? Yes, Mr. Jayesh, बताइए। सर रोटेशनल मोशन में एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, बट इसमें एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बुक की देख के बता रहे हो क्या? सर मेरा वीडियो कभी? देख लो, मैंने बुक पे हाथ आंख भी नहीं लगाई है। अच्छा, कोई बात नहीं। मिस्टर कबीर, Yes, sir. rotation and circular motion, what's the difference? So what? What is the difference between rotational motion and circular motion? Sir, I don't know. Okay, Adya. So rotational motion is when a body is pivoted to a point and it's rotating about that point. And Mhm. uniform circular motion is when a body, say a car, is going in a circular path. Okay. So circular motion is around a fixed point, right? Circular motion is about a fixed point. Okay, what a fixed axis, fixed point, कुछ भी हो सकता है. See, circular motion is for one particle. तो जैसे कोई बड़ी सी body है, it is rotating. इसके अंदर के जितने भी particle है वो circular motion कर रहे हैं. The combination of circular motion of each particle of a body is called rotational motion. Okay, sir. Rotation क्या हुआ? Rotation is combination of circular motion of each of its particle. एक particle circle पे move करता है. This is one particle. It is moving on a circular. This is circular motion with certain velocity about it. ऐसे बहुत सारे particle system के अंदर जितने भी particle है उस body में, when all the particles move in a circular path about the same common axis, it is called rotational motion. Yashasvi? तो मुझे जो समझ आया, दैट इज जैसे अगर हम अर्थ का एग्जांपल ले तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, तो ये रेवोल्यूशन। नहीं, revolution rotation दोनों circular motion के एग्जांपल है। जब एक पार्टिकल, जैसे यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी बॉल थी, लेट्स से दिस इज अ बॉल, इसके मोशन को हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन, करेक्ट? राइट? अब हम सपोज इस बॉल की जगह पे ले लेते हैं एक बड़ी सी रॉड, instead of this ball consider a rod maybe, or maybe a disc या sphere, कुछ भी ले लो, a rod, a disc, solid sphere, hollow sphere, for that matter you can take any body, not the particle. अब अगर ये रॉड रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स, all of those particles are moving, और वो सब किस पाथ में मूव कर रहे हैं? They all are moving on a circular path. यस सर। So combination of circular motion of all of its particle is called rotational motion. इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में एज अ कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ दिस रॉड. सो फिर आई एम क्लियर रोटेशन क्या है, बट आई एम नॉट क्लियर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। किसी एक पार्टिकल का रोटेशन, दैट्स इट. If there is a body, big size body, it is moving, it is rotating, means उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के उसका सारे पाथ सर्कुलर है, पर होती वो छोटी सी बॉडी है जो वो सर्कल में घूम रही है। ये रॉड है, रॉड को पार्टिकल्स की हम कॉम्बिनेशन से अज्यूम कर सकते हैं. It is a combination of many particles together. यस सर। Each particle is moving on a circle. So rotation हम कब बोलते हैं? जब किसी भी बॉडी के अंदर के हर एक पार्टिकल, each particle is moving on a circular path.
Whereas uniform circular motion में सिर्फ about एक the particle same हिल रहा है. axis, and circular motion for one particle, not for the whole body. Got So it. disk is rotating, rod is rotating about one axis. This is rotation of disk. इसको हम circular motion of disk नहीं बोलेंगे. This is So rotation of basically, rod about one sir, axis for जो to one end. एक्सिस से रोटेशन होती है तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं, और जब सर्कुलर पाथ में जाते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है. एक पार्टिकल, एक पॉइंट मास जब रोटेट करता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं. जब कोई बड़ी बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, जब वो मूव करती है सर्कुलर मोशन में, then that is called rotation. So combination of circular motion is rotation. That's it. जैसे अभी अर्थ क्या हो रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है. अर्थ इज रोटेटिंग. अर्थ के ऊपर कहीं ये मिस्टर विहान है. विहान सिटिंग ऑन द अर्थ is actually moving on a circular path with the rotation of earth. अर्थ का रोटेशन है और विहान का सर्कुलर मोशन. करेक्ट. बॉडी रोटेट होती है, उसके अंदर का कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और रोटेशन की डेफिनेशन ही यही है. इफ ऑल द पार्टिकल्स मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ अबाउट द सेम एक्सिस, then that body is said to be in rotation. Clear? Kabir, Yes, sir. is the definition clear? The difference is clear between rotation and circular motion? Yes, sir. Body rotates, particle performs circular motion. One small particle moves on a circle. Such many particles, if they are moving on a circular path, their combined motion is called rotation of that body. Right, so let's come back. Circular sir, motion, yes. एक पार्टिकल अगर घूमता है तो वो अपना सर्कुलर मोशन है, और जब सारे पार्टिकल्स घूमते हैं तो वो रोटेशनल मोशन है. हाँ, पूरी बॉडी मूव करे इसका मतलब कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, all those particles are moving on a circular path. All those particles are moving simultaneously about the same axis. सबकी एक्सिस भी सेम होनी चाहिए, then it is called rotational motion. तो सर्कुलर मोशन के लिए प्राइम मोस्ट कंडीशन क्या है? एक सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए जो उस सिस्टम में प्रेजेंट कोई भी फोर्स या सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है. जैसे स्ट्रिंग वाले केस में देखा हमने, स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ है, सेंटर की तरफ, mg बाहर की तरफ. तो यहाँ पे T माइनस fg को हमने FC लिख लिया. C स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इज द नेट फोर्स दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. Another example, motion of Earth around Sun, Earth or any other planet. So this is Sun. When Earth rotates about it, अर्थ के रोटेशन के लिए चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन प्रोवाइड करता है? दोनों के बीच में लगने वाली ग्रेविटी. The gravitational force acting between Earth and Sun provides the required centripetal force. जब हम कार टर्न करते हैं फिर कौन प्रोवाइड करता है? जब हम कार टर्न करते हैं तो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. Who is gone? तो 1 2 3 4 5 6. अच्छा. Gravitational force acting along between the sun and the earth provides the centripetal force. Next example है जब हम कार को टर्न करते हैं, which force will provide the for turning of car? Mr. Jayesh. सर आई थिंक कि सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई थिंक द फ्रिक्शन विल स्टॉप द कार फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ इट्स टर्न. करेक्ट. पता नहीं है वही अच्छी बात है, पता होना भी नहीं चाहिए, सोचना है. पता होता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री में,
फिजिक्स में या साइंस में हम लॉजिक लगाते हैं, गुड। अगर हमें कार को टर्न करना है किसी भी रोड पे, सपोज दिस इज अ टर्निंग ऑफ कार एंड दिस इज बैक व्यू, तो एक फ्रिक्शन होना चाहिए। दिस सरफेस डज नॉट हैव फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर नहीं है, इसके टायर पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो हम इस कार को इस रोड पे टर्न नहीं कर सकते, बिकॉज सर्कल पे टर्न करने के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। सर तो फॉर फ्रिक्शन द फिर दूसरे साइड पे भी तो लगेगा, अगर इस साइड पे लग रहा है तो। कौन सी साइड पे? जैसे अगर यहाँ पे लग रहा है, लेफ्ट राइट साइड को टर्न कर रहे हैं, राइट साइड पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फिर वो जो लेफ्ट साइड पे भी तो लगना चाहिए। नहीं मतलब ये दोनों टायर पे लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट। जैसे कार अगर टर्न हो रही है सपोज इस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कार ऐसे टर्न हो, तो कार के जो व्हील है वो स्किड किधर करना करेंगे? इफ सपोज ये सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होता तो कार बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती बाहर की है? तरफ। हाँ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इट इज अ परफेक्टली आइस सरफेस और समथिंग स्नोफॉल हो गया और आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तो स्किड करके बाहर की तरफ जाती है। स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ। अच्छा। तो ये जिधर इसका सेंटर है उसी तरफ ही लग रहा होगा, एंड दिस फ्रिक्शन शुड बी सफिशिएंट एनफ सो दैट इट कैन कॉज इट टर्निंग ऑफ द कार। अगर ये फ्रिक्शन कम है तो चांसेस है कि आप स्किड कर जाओगे, बाहर की तरफ गिर जाओगे। और टर्निंग ऑफ कार्स और द बाइसिकल, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर। और कोई एग्जांपल सर्कुलर मोशन का? श्रेय, और कोई एग्जांपल? श्रेय, any other example of circular motion? श्रेय हो, निकल गए फिर। Mr. Shrey, yes, you are there. बेटा आवाज तो आ रही है ना मेरी? थोड़ी म्यूजिकल नोट्स बज रहे हैं आपके, चलो कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ और इसने ऑटो एग्जांपल। ट्यून लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ऑटो ट्यून। ओके, वेरी गुड। थर्ड वन इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं? सर्कुलर पाथ में। न्यूक्लियर चार्ज प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव और न्यूक्लियस के पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दैट अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल। The attraction force between nucleus and the electron which is revolving provides the centripetal force. ये तो कुछ एग्जांपल हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स के। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है बाकी सब कुछ हो, then it is not possible for a circle to move on a for a particle to move on a circle. और जो centripetal force, yes, I also have one example, but मैं उसमें श्योर नहीं हूँ कि वो फोर्स कहाँ से कौन सा लग रहा है। अगर आप वो बता सकते हो। yes, आपको पता है लट्टू क्या होता है जो ऐसे गोल गोल घूमता है? टॉप बिल्कुल पता है। मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि अब तो नहीं आते, बट हाँ मुझे तो पता है, मैंने सर यूज कर पता है, इसमें रस्सी बांधनी होती है नीचे क्या से। उसे रस्सी से कुछ सर खींचते ये हो, फिर इंडियन वो- वर्जन ऑफ बेब्लेड है। हाँ, मुझसे कभी घूमता नहीं था दो। ओके, हाँ ठीक है। तो इसमें कौन सा ओके, फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? क्या कहाँ लग रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है इसमें? जैसे सर वो ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशनल जिसकी वजह से मोशन हो रहा होता है, है ना इसमें कौन लट्टू सा है का। वो? ये रस्सी में जो रस्सी आप लगा दो ना स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग को पकड़ के खींचते हो, हाँ इसकी जी। वजह से। सर बट लट्टू का तो रोटेशनल मोशन होता है, सर्कुलर तो होता ही नहीं। रोटेशनल भी रोटेशन होता है और मतलब सर्कुलर सर्कुलर भी मोशन होता है। ऑफ ऑल पार्टिकल, अभी तो बताया।
मतलब वो तो सिर्फ रोटेट, हाँ अगर एक पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो सबके मोशन के लिए सबको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। मतलब उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो एज अ होल हाँ, वो बॉडी रोटेशन में होगी। रोटेशन में होगी बिल्कुल। और जब सारे के सारे पार्टिकल सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हैं तब उसको रोटेशन अबाउट दैट एक्सिस बोलते हैं। जैसे तो ये एक एक्सिस है, सेकंड, ये सर्कुलर है कि नहीं है? एवरी रोटेशन इज सर्कुलर यार, तो क्या कर रहे हो। ओह, रोटेशन ऑफ वन सिंगल पार्टिकल इज डिफाइंड एज द सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है तो वो रोटेशन मोशन कर रहा तो है। इसमें द बहुत बॉडी सारे रोटेट। पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ एक पार्टिकल है? कहाँ एक पार्टिकल है, ये बहुत बड़ी सी बॉडी है बेटा, इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल्स हैं। Yeah. दिस हैज इनफाइनाइट पार्टिकल्स, बहुत सारे हैं, ये एक थोड़ी है। तो फिर ये सर्कुलर कैसे है? उसका एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, हर एक पार्टिकल को सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए, इसको भी सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए। ओह, ओके, ठीक है सर, गॉट इट। बट यहाँ पर केवल थोड़ी देर के लिए सेंट्रल फोर्स चाहिए, एक बार वो मूव करना स्टार्ट हो गया उसके बाद तो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आ गया। स्टार्टिंग में हम रस्सी लगाते हैं, पुल करके छोड़ को वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं। इनिशियली ओनली देयर इज सम टॉर्क रिक्वायर्ड टू generate the motion, and once motion is generated, if it is on a smooth surface it will continue rotating for a long time, but actual smooth surface कुछ होता नहीं है because of the friction, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और finally stops. Sir, on a smooth surface, will the top keep on spinning infinitely? Yes, if we can make a perfect smooth surface so that it does not have any torque due to the friction, but ऐसा कोई surface है नहीं इसलिए वो practically impossible है। चलो आगे बढ़ते हैं। Next is types of circular motion. Types of circular motion. First is uniform circular motion. Uniform motion क्या होता है? When a particle move with the same distance and same time interval. And uniform circular motion क्या होता है? When a particle move with a circle. पर आपकी आवाज अनक्लियर है। मेरी आवाज अनक्लियर है? ओके, जी अब ठीक है। अब ठीक है, फाइन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं जब कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव करो और वो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर करे। सपोज पार्टिकल ने स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ से in 1 second 30 degree, next second more 30 degree, and then 30 degrees and 30 degree and 30 degree and so on. So your particle moves in a circle such that it covers same angle in same time interval. That is called uniform सो circular. सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट अभी अनिका का फोन आया, वो वेटिंग रूम में है। Okay. अनिका से अच्छा रुको, मैं सही करता हूँ उसको शायद। I think वो मैम ने आईडी बनाई है, so she has kept that option. एक second. Yeah. Waiting room. Okay. Fine. I have removed the waiting room option. Now anybody can come and go at any time. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहे हैं और इस तरह से मूव कर रहे हैं कि हर एक यूनिट टाइम में वो सेम एंगल सेंटर पे कवर कर रहे हैं। मैं इसलिए साथ में रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वर्ड्स आर ऑलमोस्ट सेम। यूनिफॉर्म मोशन होता था स्ट्रेट लाइन मोशन में, पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इन इक्वल टाइम इंटरवल इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस। If it covers equal distances in equal time interval, that is uniform circular motion. Similarly, if a particle covers equal angle in equal time interval, it is called uniform circular motion. Correct?
So I don't know आपको पता है कि नहीं पता, but आप mute करो. Okay, yeah. So uniform circular motion means when a particle moves in a circular motion such that it covers equal angle in equal time interval. Every time it covers same angle at the center. So हम जब circular motion को define करेंगे तो ये तो समझने की definition हो गई. Definition क्या है? If a particle moves in a circle with constant speed. If a particle moves on a circular path with constant speed. सर अगर हम ये लिख देते हैं कि when a particle covers same angle in same amount of time तो गलत होगा क्या? गलत तो नहीं है, सही है, बट बुक में नहीं लिखा होता है, इसलिए पहले आप वो डेफिनेशन लिखो जो बुक में लिखी है. समझने के लिए तो वही डेफिनेशन ठीक ही है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब पार्टिकल कवर्स सेम एंगल इन सेम इक्वल इंटरवल, बट उसके लिए हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर कुछ डिफाइन करते हैं. So if a particle moves in a circle with constant speed, the motion, it is called uniform circular motion. Right? Okay. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट है. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? इज द वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मिस्टर श्री, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? इज द वेलोसिटी कांस्टेंट और नॉट? श्री, कबीर, Yes, sir. in uniform circular motion is velocity constant? No Is sir. velocity constant? So velocity. So it shouldn't be, because then there should be varying velocities. No, is there direction? Sorry, is the velocity constant or not? Answer is no. Why not? Because its direction is changing. Initially, it is going towards right, then going up, then going left. Yes, So when a sir. particle moves on a uniform circular motion, it moves with variable velocity, but constant speed. Right? So Vihan, you understood this? अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. Yes sir. So uniform circular motion is an accelerated motion, huh? Yes, absolutely. All circular motion must be a एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कल पे मूव करना पॉसिबल ही नहीं है. So in this particular case, when a body is moving on a circular motion with a constant speed, its speed remains constant, but the direction is changing, and due to that only it is moving. It is termed as uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब की डायरेक्शन है. द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल, एंड therefore it is accelerated motion. The velocity of particle is changing due to change in direction only.
मैग्नीट्यूड तो सेम है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली, hence called as, hence it is an accelerated motion. Though speed is same, angle covered is same, but अभी मोशन में एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. Did you see you understood this? Yes, sir. Okay. What about speed? Speed is constant. Speed is constant or uniform, but the direction is changing, therefore velocity changing. So कौन सा वाला acceleration है जो केवल direction change करता है? That is centripetal acceleration. Centripetal acceleration, which acts always perpendicular to the velocity, can change. Centripetal acceleration only changes the direction of velocity. Only changes the direction of velocity. It cannot change the magnitude. Right? And that's the difference between uniform linear and uniform circular motion. Uniform linear motion is not an accelerated motion. There is no acceleration, no force. But if it is a uniform circular motion, it is an accelerated motion and there is a force always acting toward the center called as centripetal force. Anika understood this part? Yes, sir. अब आते हैं हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. What is centripetal and what is centrifugal? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कोई भी ऐसा फोर्स जो सिस्टम में सेंटर की तरफ लग रहा हो. Centripetal force is a force is always required toward the center, which is to rotate a body, for a body to rotate or for a particle to perform circular motion. That is the centripetal force. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला, द डेरिवेशन इज नॉट देयर, बट हम फिर भी फॉर्मूला लिख लेते हैं. Centripetal acceleration for a particle we can directly write the formula without using the difference, without using the derivation. Suppose कोई particle circle पे move कर रहा है v velocity से, और जिस circle पे move कर रहा है उस circle पर उसकी radius है r. So if a particle moves in a circle with a speed v on a circle of radius r, it requires a centripetal acceleration. Centripetal acceleration हमेशा velocity के perpendicular होगा. AC stands for centripetal. The magnitude of centripetal acceleration is given as v square by r, and the direction is towards the center. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल और केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट नहीं है. It always be perpendicular to the velocity, so it can only change the direction, and it is a necessary requirement for all type of circular motion, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म. So v क्या है यहाँ पर? हाँ बेटा, So यहाँ पर v क्या है? Like v की वैल्यू क्या लेंगे हम? अगर supposingly ये वाला किसी क्वेश्चन में v here is velocity all the time. अच्छा, okay. If a particle is moving at 10 meter per second, so 10 will be the speed. If it is moving at 20 meter per second, then 20 will be the speed. Got it. R is the radius of curvature. So it only changes the direction, or it can only change the direction. Centripetal acceleration, it can only change. Okay, रिद्धि आपके अभी फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया? रिद्धि, Yes, sir. first chapter finished in school? Yes, sir. Okay.
Second is also started, finished. नहीं सर, सेकंड तो स्टार्ट नहीं करा। वर्क डिस्प्लेसमेंट सर, वो तो बहुत नहीं, बड़ा मैं चैप्टर है। रिद्धि के स्कूल में पूछ रहा हूँ, आप तो तो डिफरेंट स्कूल में। हमारे स्कूल में सेकंड भी फिनिश हो गया। हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था। ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, हम थोड़ा आराम आराम से चलते हैं। आराम मतलब थोड़े और एक्सरसाइजेस करते हुए। So the force which provides centripetal acceleration is called centripetal, which provides centripetal acceleration is called centripetal force, and it is not any new force जैसे टेंशन या वेट या फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स नहीं है। ये कोई भी फोर्स हो सकता है जो सेंट्रिपेटल फोर्स के काम कर सकता है। It's called centripetal force. तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन थी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन के लिए वो थोड़ी बदल जाती है। एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v स्क्वायर बाय r। सो हम यहाँ पे जो mv स्क्वायर बाय r लिख रहे हैं वो कुछ नया नहीं है, वो इज नथिंग बट न्यूटन सेकेंड लॉ। करेक्ट। सेंट्रिपेटल फोर्स जैसा कोई भी नया फोर्स नहीं है, जो भी पहले से फोर्सेस लग रहे हैं उनका सेंटर की तरफ लगने वाला रिजल्टेंट वो फोर्स हमेशा mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होना चाहिए। Only then that particle can change its direction. और इसके हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस कर लिए। सर्कल मोशन में जैसे अर्थ के मोशन के लिए ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपेटल फोर्स। In the attraction between electron and nucleus, there is electric force. In the case of stone tied and moving, tension provides. In the case of cycle or car taking a turn on the friction, it is done by friction force. It is done by the centripetal force. अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, थोड़ा ये समझने की कोशिश करिएगा कि बुक में अगेन इट्स नॉट वेरी क्लियरली मेंशन। अभी हम किसी सर्कल पे रोटेट हो रहे हैं क्या? You are sitting in your room, I am sitting here in the institute. Are we rotating on any circular path? Yes or no? नो सर। सर Yes or हम no? अर्थ की रोटेशन पे है बस। हाँ आप वैसे rotate हो रही ना? सर, हम सर्कुलर मोशन में, बट हम रोटेशनल मोशन में। Rotation of a particle is circular motion. यार तुम भूल जाते हो। Rotation and rotation circular motion same thing, केवल difference क्या है, जब बहुत सारे particle होंगे तब उसी circular motion को हम rotation का नाम देते हैं। My question here is, as of now हम अपनी जगह पे बैठे हुए, are we rotating in any circular path? Yes or no? यस Answer is सर। yes. We are rotating because we are on the earth, और अर्थ अपने एक्सिस की चारों तरफ एक्सिस से अबाउट रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन ऑल द पार्टिकल ऑन द अर्थ आल्सो रोटेट, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस इज हमारे ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स फील होगा। अभी हम सर्कल पे मूव नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें एक बाहर की तरफ फोर्स फील होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे फ्रेम में हैं जो कि ऑलरेडी, किसी रोटेटिंग फ्रेम में जब हम जाते हैं तो हमें बाहर की तरफ एक फोर्स अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हम खुद रोटेट हो रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, करेक्ट। जब कोई फ्रेम रोटेट हो रहा है, कोई सिस्टम रोटेट हो रहा है, हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। जैसे सपोज कोई प्लेटफॉर्म है, ये पहले जो एक पार्क में स्विंग होता था, उसको लेके पहले दौड़ना होता था और फिर उसी पे खड़े हो जाते थे, ऐसे वाला कुछ देखा कभी? हाँ सर, कोविड के पहले की याद है। अच्छा, ऐसे पार्क में जाते थे। आजकल तो मोबाइल वाले पार्क में बिजी रहते हैं बच्चे,
गेम पार्क, ओके वेरी नाइस। कोविड, प्री कोविड याद है, ऐसे कुछ मेरे को राउंड टाइप होता है, इसको लेके पकड़ के पहले दौड़ना होता है एंड देन यू जंप ऑन इट। देखा ना आप लोगों ने ये, बाकी लोगों ने? विहान, हाँ सर। इसको लेके पहले राउंड एंड राउंड दौड़ते हैं, फिर इसी में जंप कर जाते हैं। जैसे जंप करते हैं क्या होता है, व्हेन यू जंप इन इट, को बाहर की तरफ एक धक्का लगता है, यू फील अ पुश इन आउटवर्ड डायरेक्शन। या जो बड़े वाले, जो क्या बोलते हैं, मेरी जिसको, को राउंड, हाँ बेटा, जो जो मेरी को राउंड। एंटरटेनमेंट पार्क में होता है, मेरी गो राउंड, हाँ मेरी गो राउंड। सो व्हेन यू रोटेट, आपको लगता है हमारी बॉडी बाहर की तरफ गिर जाएगी, दे स्टार्ट रोटेटिंग आउटसाइड, फीलिंग अ फोर्स आउटसाइड, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल कब लगता है, जब हम खुद रोटेट हो रहे हो या रिवॉल्व, या हम खुद यूनिफॉर्म सबके सर्कुलर मोशन पर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है, जब हम किसी ऐसे फ्रेम में जाते हैं जो कि रोटेट हो रही है, जैसे अर्थ भी रोटेट हो रही है, अर्थ सर भी रोटेट हो रही है और इस हम अर्थ केस पे आ रहे हैं। में, ये हाँ मेरी बेटा, को राउंड वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता है, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल लगता है। हमारे ऊपर जब वो खुद रोटेट हो रहा है, उसकी जो आयरन की जो रॉड्स है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल लग रहा है। हम्म। ये पहले तो हम तो बाहर है ना, हम थोड़ी रोटेट हो रहे हैं, हम तो उसे रोटेट करा रहे हैं। तो जो हम उसके पे रॉड, सेंट्रीफ्यूगल लगता है। जब हम जंप करके पहुंच गए उसके अंदर, वो रोटेट हो रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो हमें एक बाहर की तरफ फोर्स फील होता है, आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सारे फोर्सेस तो रिलेटिव हो गए ना। the iron is not feeling the same forces as us. यस यस यस, दे आर रिलेटिव, कि सबकी डिस्टेंस भी डिफरेंट है, सबकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल रोटेशन हो रहा है इस फ्रेम का, उसके ऊपर जो मैन खड़ा है उस पर एक फोर्स फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो मैं थोड़ा ना डेफिनेशन की जगह पे मैं आपको फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। फीलिंग जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई प्लेटफॉर्म है, स्पिनिंग प्लेटफॉर्म, बहुत हाई स्पीड से ये प्लेटफॉर्म स्पिन हो रहा है, इस पे आपने छोटा सा कॉइन रख दिया, कॉइन किधर की तरफ गिरेगा, अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ गिरेगा? बाहर की तरफ, it will move in a straight line. This is a high speed spinning platform. If you put something, some coin on it, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, टेंजेंशियली इसको क्लोज लगेगा and it will start coming outside. इसका मतलब इस पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगने वाले बाकी फोर्सेस को बैलेंस कर लेता है, and that's why it does not fall or does not go. बेटा डिफरेंस आ रहा है क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में? सेंट्रीपिटल फोर्स Yes. तब लगता है जब वो बॉडी खुद किसी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील तब होता है जब वो किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में या किसी रोटेटिंग फ्रेम में है। सर हमारी टेक्स्ट बुक में जो स्कूल में करवाया उसमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट विच इज स्पिनिंग, तो इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें centripetal force is pulling it towards the center and centrifugal force is pulling it outwards, इसलिए वो उसी पाथ पे रह रहा है। सो उसी एक ऑब्जेक्ट में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, आपकी बुक में सही लैंग्वेज लिखी है। इफ यू हैव अ बुक राइट नाउ आई कैन शो इट टू यू। देखो इसमें जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ merry-go-round, a big circular metal platform which rotates on its axis with a ball in your hand stretched towards। तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। सी देखो, फिजिक्स में क्या है ना, पंगा यही है कि फिजिक्स पढ़ने पे थ्योरी वाइज तो सब बहुत इजी है, but you have to grasp it. You have to grasp means you have to understand what exactly is the centripetal and centrifugal force. ये तो सबसे लिखा है, अंदर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, but that doesn't solve it.
you're supposed to, can you see this on the screen? बेटा स्क्रीन पे Yes. दिख रहा है ना? हाँ. A force acting on a body away from the center of circular path is called centrifugal force. To understand this force, consider the following experiment. Suppose you are standing in the center of a merry-go-round, a big circular metallic platform which rotates on its axis, with the ball in your hand stretched outwards. Ball is stationary as observed by you. Now place the ball on the platform just in front of you. It is seen that ball immediately moves away. ये जैसे मैंने coin का example दिया था. जब आपने हाथ में पकड़ के रखा है तो ball आपके हाथ में रखी हुई थी. But if you keep that ball on the platform which is rotating, it will be gone. It will be gone means now it will be moving around tangentially और वो वहां से बाहर निकल जाएगी and it will fall down along the radius बाहर की तरफ. Naturally, you will describe this motion by saying that the force called centrifugal force must be acting, which makes the ball to move away. अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था, वो खुद rotate हो रही थी because you are rotating. Now, if you keep that ball in the platform, on the platform, then platform के rotation की वजह से उस ball पे बाहर की तरफ force लगेगा, and that force is called centrifugal force, which has caused the ball to move away. Correct? Now understand the same motion from the person who is sitting, who is on the earth, from his observation point. The motion of ball as observed by the person standing on the ground outside the merry-go-round. He sees you holding the ball in your hand and the ball is seen to move on a circular path as long as it is in your hand. किसने observe किया? A person outside the merry-go-round जो कि earth पे खड़ा हुआ है. This is the platform, you are sitting and in your hand there is a ball. For this person who is not inside this frame, उसके लिए क्या हुआ? ये बॉल भी रोटेट हो रही है सर्कल में. For the person on the ground, let's say A, and for the person who is on the platform B, दोनों के लिए same motion has two different scenarios. For A, the ball is moving on a circle, and for B, the ball is in a state of rest. Correct? Yes. If a ball is observed by the person A, for A, ball is moving on a circular path. और अगर ये बॉल खुद सर्कल में मूव करी तो बॉल पे क्या लगना चाहिए? Which means there must be a centripetal force on A. बेटा है कोई मैदान में? कोई बोल नहीं रहा है? हाँ ना. I'll take the class on the boards that I can see you Okay, with the sir. platform. ये एक सिचुएशन है, एक्सपेरिमेंट समझ लो. एक सिचुएशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें एक पर्सन है, उसने हाथ में बॉल पकड़ी हुई है and he is rotating with the platform. For this person who is in the platform, the ball seems to at rest, but from the person who is on the ground, he observed this as moving on a circular path. Correct? Yes. Same body in the same state is observed in two different scenarios. For person A, it is moving on a circle, and for person B, it is in a state of rest. ये समझ आ रहा है? हाँ सर. ध्यान. Yes, sir. बेटा को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है sir. नहीं आ रहा है, आवाज से लग रहा है. सर ये तो आ रहा है, मैं पहले का सोच रहा हूँ कुछ. क्या बताओ?
पहले का ही वो रोटेशन और सर्कुलर, वो मैं अपने आप में क्लियर कर रहा हूँ, ये तो समझ आ हाँ ठीक है, अपने आप क्लियर कर लेना, कोई बात नहीं। विद रिस्पेक्ट टू ए पे लग रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए बॉल पे लग रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी बॉल हैज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स in outward direction. Sir, I didn't realize I was muted. If someone suddenly let the ball go while spinning on a rotating platform, would would the ball go in a straight direction or would it just fall down? Yes, Jayas, you're saying something. We got a call. Jayesh, you're asking something. बताइए. Sir, ये जब high speed पे circular disc move कर रही है and the person suddenly lets the ball go, will the ball move in a straight line or will it just fall back down? No, it will move rarely outwards. जब तक इसने हाथ में पकड़ के रखा है तब तक वो रेस्ट पे लग रही है, क्यों? क्योंकएक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक क्योंकि प्लेटफॉर्म के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. As long as this ball is in the hand, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया और इसीलिए फील हो रहा है कि वो बॉल रेस्ट में है. बट जब ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे, ए पे खड़े होकर देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हट गया, क्योंकि ए है अभी अर्थ पे, ए रेस्ट में, ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में नहीं है. जब हम किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में होते हैं तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें फील होता है, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे ऊपर लगता है. जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर है तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू पता नहीं पड़ेगी. देयर इज नो सेंट्री. सर ये एक ऐसे डाउट है बोलो बेटा. सर, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ठीक है, समझ आ गया, बाहर की तरफ खींचते हैं, बट वो एफ फोर्स कैसे, क्या लग रहा है बॉल पे? जो आपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, आपने हाथ से लगाया उसको, इट्स बिकॉज इन योर हैंड, बिकॉज योर मसल्स, देयर इज अ फोर्स एफ, और उस फोर्स की वजह से ही उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और वो सर्कल पे मूव कर रही है, रोटेट कर रही है. इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. जब हम ठीक बॉल है, तो छोड़ आपने देंगे तो एफ फोर्स रहेगा ही नहीं और वो बाहर की तरफ चली जाएगी. यस फिर केवल सेंट्रीफ्यूगल, जब वो यहाँ पे इस बॉल को रख देगा तो अंदर वाला जो फोर्स है उसने मसल से लगा रखा था वो खत्म हो गया, एक बाहर की तरफ केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर की तरफ गिर जाएगी रेडियली आउटवर्ड्स.
तो आपकी बुक में जैसे कुछ लाइन लिखी हुई है ना, ये ठीक है, स्कूल के टीचरों का भरोसा नहीं है, उन्होंने क्या पढ़ाया. For the person standing on the ground, centrifugal force does not exist. Right? For the person on the ground, क्योंकि वो उस रोटेटिंग फ्रेम में है ही नहीं, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसी कोई चिड़िया होती ही नहीं है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे इसका और अगर इक्विवेलेंट एग्जांपल समझना चाहते हो, कार या बस एक्सेलरेट हो रही, जो बस के अंदर है उसको तो एक पीछे की तरफ फोर्स फील होगा, वो पीछे की तरफ झुक जाएगा. यू विल फील अ बैकवर्ड फोर्स को बोलते हैं स्यूडो फोर्स, राइट? जो इनर्शिया की वजह से एक्सप्लेन करते हैं, कार आगे जाती है तो हमारी बॉडी पीछे को. बट ये जो फोर्स है ये ग्राउंड वाले को पता ही नहीं पड़ेगा. इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसकी बॉडी पे थोड़ी पीछे की तरफ कोई फोर्स लगने वाला है. बेटा ये समझ आ रहा है? तो जैसे रॉकेट में अगर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो द पीपल इनसाइड विल फील कि दे आर बीइंग पुल्ड डाउन, बट बाहर किसी को लगेगा कि बस रॉकेट ऊपर जा रहा है और कुछ नहीं होगा. There is no force. Any person who is not sitting inside the rocket, वैसे ही जब कार को या बस को एक्सेलरेट करते हैं, at the time of acceleration there will be a force. At the time of acceleration आगे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से उसकी बॉडी पीछे की तरफ लीन हो जाती है. तो सर जो ए है उस पे ma फोर्स लगेगा ही नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है. हाँ, मतलब ए में तो पता ही नहीं पड़ेगा. ए के लिए ऐसा वाला फोर्स, ये एम वाला फोर्स है, इसका एग्जिस्ट नहीं करता. सेम लॉजिक यहाँ पे था. जब ये प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है और प्लेटफॉर्म पे कोई बॉक्स रखा हुआ है या कोई पार्टिकल रखा हुआ है, जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है उसको पता ही नहीं पड़ेगा कुछ होता भी है ऐसा. देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फॉर ए देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी होगा जब आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं. So centrifugal force की definition लिखना चाहो लिख लो, या हमने लिखी है पता नहीं. We wrote the centrifugal force, not yet. अभी centripetal force लिखा था ना. बेटा ये फिर से आराम से समझो, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आपसे पूछ लेना. श्रेय एंड तेजस्वी, सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी पे लगता है जो खुद सर्कल पे रोटेट हो रही हो, और उस बॉडी पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे यहाँ पर ये बॉल इस मैन के हाथ में थी, या मैन दोनों सर्कल पे रोटेट हो रहे हैं, दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ mr ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है. नाउ फॉर दिस बॉल, जब वो मैन के हाथ में, तो वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे भी है. जब किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं या रोटेटिंग फ्रेम में होते हैं तो हमें बाहर की तरफ भी फोर्स फील होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. So when this ball is in the hand of man, एक अंदर की तरफ फोर्स है सेंट्रीपिटल, एक बाहर की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल, राइट? सो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ आ गया, पर मुझे ये नहीं समझ आया सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो उस बॉडी को सर्कल पे रोटेट करने के लिए चाहिए. यहाँ पर वो कौन सा फोर्स है? मैन के लिए. मैन और टेबल के बीच का फ्रिक्शन. अगर ये मैन किसी प्लेटफॉर्म पे बैठा है और देयर इज नो फ्रिक्शन, तो प्लेटफॉर्म रोटेट होता जाएगा और मैन स्लिप करके बाहर गिर जाएगा, राइट? इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू व्हिच ओनली इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन मूव्स ऑन अ सर्कल. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसा फोर्स है जो सिस्टम में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने बाहर से कोई लगाया नहीं है. दिस इज सम फोर्स एग्जिस्टिंग इन दिस सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है सर, गॉट इट. अब बिकॉज ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, किसी अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में जाते हैं तो हमें उसके रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? यस सर. इस पर्सन ए के लिए, सॉरी जो पर्सन बी है इसके लिए सेंट्रीपिटल भी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है. आर दे अंडरस्टूड? रिद्धि? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shrey? Yes, sir. Okay. I will take tomorrow's class on the board. Preferably, I want to see your face reactions. Sorry for today.
ओके नो प्रॉब्लम. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं. बुक में कुछ लिखी है बट दैट्स नॉट काइंड ऑफ कंप्लीट. ज्यादा मैथमेटिकल पोर्शन तो है नहीं, सो एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम अच्छे से समझ लेते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना. In a rotating frame, in a rotating frame, ये वर्ड थोड़ा मिसिंग है आपकी बुक की डेफिनेशन में. स्कूल में लिखना है नहीं लिखना है वो टीचर से पूछ लेना. टीचर जो लिखा है स्कूल में वही लिख के आना, समझने का काम हमारा है. In a rotating frame, the force acting on a body away from the center. Force acting on a body away from the center of circular path. Away from the center of circular path is called centrifugal. Is called centrifugal force. Right? बेटा ये समझ आ गया क्या? यस सर समझ आ गया. अच्छा, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल साथ में लग सकते हैं? नहीं. इनमें एक अगर हम अगर हम किसी रोटेटिंग बॉडी में बैठे हुए हैं तो if we are in a rotating body, just say for example it is equal to centripetal force in magnitude. ये अलग से लिख लेना. It is equal to centripetal force in magnitude but opposite in direction. सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जब कोई बॉडी खुद रोटेट होती है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जब हम किसी रोटेटिंग बॉडी में है. जैसे कार में है, कार टर्न होती है लेफ्ट की तरफ, हमारी बॉडी बाहर की तरफ लीन हो जाती है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक ये छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एक कुछ करते हैं छोटे में. अगर हम सपोज किसी बकेट में वाटर लें, a bucket full of water and it is rotated. So even at the maximum height, when the bucket is upside down, the water doesn't fall. क्या कभी ऐसा? A bucket full of water but is rotated in vertical circle. ये बकेट में पानी है. It is rotated on a vertical circle. ऊपर जाने अगर इसको हम उल्टा भी कर देते हैं, exactly water doesn't fall. क्यों? क्योंकि अभी this bucket is rotating. बकेट के अंदर जो वाटर है उस पर ऊपर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नीचे लग रहा है उसका वेट. So the weight which is acting downward direction is balanced by the centrifugal force. इसलिए पानी नीचे की तरफ नहीं गिरता. This is another example of centrifugal force. Centrifugal force का दूसरा एग्जांपल क्रीम निकालने के लिए, मिल्क से क्रीम या बटर निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है बड़ी बड़ी. उसके अंदर क्रीम रख के, मिल्क रख के और उसको बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं. कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज. पनीर और दही बनाने के लिए, बटर निकालने के लिए. So उसमें जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, पार्टिकल बाहर की तरफ आ जाते हैं, सारे कलेक्ट हो जाते हैं और हैवी होके फिर नीचे की तरफ बटर के फॉर्म में आ जाएंगे. All the particles experiences the outward force and because of that the cream heavy particle starts moving away from it और वो बाहर की तरफ आ जाए. ये समझ आ रहे दोनों एग्जांपल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्शियस फोर्स, इसको हम स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं.
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्शियस फोर्स। फिक्शियस फोर्स पढ़ा था कुछ 9th में, लेकिन शायद ऑनलाइन था तो याद नहीं होगा। अद्या, व्हाट इज फिक्शियस फोर्स? व्हाट इज फिक्शियस फोर्स? फिक्शियस का ये दूसरा नाम था स्यूडो फोर्स। Centrifugal force is called Fick's force or the viscous force. It does not act, ऐसे forces को हम Fick's force बोलते हैं जो actual में तो नहीं लगते, which does not exist but is applied to describe the certain situation, but is applied to describe the motion in accelerated frame. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फिक्शियस फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, किसी ने लगाया ही नहीं, वो अपने आप फील होता है जब हम किसी भी रोटेटिंग फ्रेम में या एक्सलेटिंग फ्रेम में जाते हैं। जैसे बस वाला एग्जांपल था, बस के अंदर पीछे की तरफ किसी ने फोर्स लगाया ही नहीं, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये केवल हमारी फीलिंग है और वो फीलिंग हमें तभी आएगी जब हम बस के अंदर है। So this set of force is a Fick's force. Nobody applied it. It acts on its own और उसको हम अप्लाई करते हैं केवल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम लॉजिक, जो पर्सन रोटेट हो रहा है इस पे एक्चुअल में फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड क्योंकि वो बॉडी सर्कल पे मूव करते हुए अपीयर हो रही है। विद रेस्पेक्ट टू ए, बी मूव्स ऑन अ सर्कल। With respect to A, B moves on a circle. B moves on a circle, hence it requires centripetal force toward the center. इसमें सेंटर की तरफ फोर्स होगा, that is m into r into omega square। अब अगर हम बात करते हैं B के रेस्पेक्ट, B के रेस्पेक्ट में B क्या कर रहा है? जैसे अभी हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ रोटेट हो रही है, हम भी रोटेट हो रहे हैं, हमें क्या लग रहा है? हम रेस्ट पे, राइट कबीर? We are in a state of rest even though earth is rotating and we are also rotating with earth, but हमें क्या लग रहा है? हम रेस्ट पे। कबीर? Yes, sir. अभी हम रेस्ट पे ना, हम इस सर्कल में मूव कर रहे हैं, नहीं मूव कर रहे हैं? नहीं sir, feel नहीं होता। It doesn't appear, but एक्चुअल में तो हम मूव कर ही रहे हैं। Yes, sir. अगर कोई बाहर से एलियन हमें देखेगा तो हम तो सर्कल में मूव करते हुए दिखेंगे उसको, बिकॉज हम अर्थ के अंदर है। Now when we go in the frame of this earth or in the frame of this platform for this example, तो हमारे ऊपर एक फोर्स तो लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि फ्रिक्शन लगाया, और एक हम इस फ्रेम के अंदर होने की वजह से एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। Now both of them cancel out each other and that is why the B appears to be in a state of rest. जब हम किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ब्लॉक बी और पर्सन बी appears at rest. B appears at rest. इसका मतलब नेट फोर्स मस्ट बी 0, और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब जितना अंदर की तरफ फोर्स है उतना ही बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कैंसलिंग आउट, so that means centrifugal force is equal and opposite to the centripetal force, which means that centripetal force is balanced by centrifugal force. So Fc plus Fr is equal to 0 minus mr omega square. माइनस का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है। mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय r
minus sign. So centrifugal force is equal and opposite to centripetal force. Centrifugal force is equal and opposite to the centripetal force. बस प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स रोटेटिंग बॉडी में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी में तब लगेगा जब वो किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में है. Where it is already in a rotating platform, it is a viscous force. It is a frictious force. It is a pseudo force. ये हमें फील तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उस रोटेटिंग बॉडी के अंदर नहीं है. किसी भी रोटेटिंग बॉडी में बॉडी अगर रेस्ट में है, इसका मतलब जितना भी उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, that has been balanced by the centrifugal force acting on it. Right? Centripetal और centrifugal force का magnitude same होता है, equal opposite होता है, so they cancel out each other, and that is why B seems to be at rest on the platform. B, the person who is on the platform, appears at rest. So ये आपका centripetal और centrifugal भी खत्म हो गया. हमने पढ़ा था अभी तक uniform circular motion. Uniform circular motion में acceleration is toward the center of the circle. Next आता है non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion का मतलब अगर कोई particle circle में move करे with variable speed. Non-uniform circular motion, when a particle moves in a circle with variable speed. When a particle moves in a circle with variable speed, it is called non-uniform circular motion. When a particle moves on a circular path with variable speed. क्या मतलब एग्जाम्पल जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, अभी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. जैसे जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं, फैन की ब्लेड स्टार्टिंग में रेस्ट में होती है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. तो इस केस में क्या हो रहा है, इसकी स्पीड भी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है. फैन को बंद करोगे तब भी वेरिएबल स्पीड होती है, जब फैन को ऑन करते हैं तब भी वेरिएबल स्पीड होती है. इन बोथ द केसेस इट इज एन एग्जांपल ऑफ non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion means when a particle moves on a circular path with variable speed. Is right? When a particle moves on a circular path with variable speed, it is called non-uniform circular motion. It is called non-uniform circular motion. It requires, if a particle moves on a circular path with variable speed, bracket में increasing or decreasing speed, it is called non-uniform circular motion. Is called non-uniform circular motion. अब अगर ये increasing speed है, ये आपके सिलेबस में, इसमें बुक में तो खैर नहीं है, बट हम बाद में पढ़ेंगे. पार्टिकल में अगर increasing speed है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि हमें एक एक्सेलरेशन तो चाहिए इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, और एक एक्सेलरेशन चाहिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए, बिकॉज इट इज स्टिल मूविंग ऑन अ सर्कल. सर्कल में मूव करने के लिए डायरेक्शन चेंज करनी होती है, और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब एक टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. स्पीड तब बढ़ेगी जब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होना चाहिए. सो देयर आर टू एक्सेलरेशंस एक्टिंग ऑन द बॉडी. टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जब कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. पहला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्पीड उसकी टाइम के साथ बढ़ रही है या टाइम के साथ कम हो रही है.
Tangential acceleration or retardation. So when a particle moves in such a way that its speed is increasing, there is an acceleration in the direction of motion called as tangential acceleration. It acts in the direction of velocity. In the direction of velocity vector. It increases or decreases the magnitude of velocity, यानी speed. It increases magnitude of velocity. Speed को बढ़ाने या कम करने का काम है tangential component का. Second is centripetal acceleration. तो centripetal तो must condition थी, बिना centripetal के circle में move ही नहीं कर सकते, circle में turning के लिए centripetal force चाहिए. So second equation is centripetal acceleration. Non-uniform circular motion means there are two type of acceleration required, tangential and centripetal. Centripetal acceleration is v square by r. सर एक सेकंड, आपने क्या बोला पिछले 1 मिनट में? इसलिए मैंने ये बोला कि जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, यानी उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, सर्कल में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और वो स्पीड बढ़ती जा रही है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सलेशन भी आना चाहिए. सो जब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ाने के लिए एक एक्सलेशन चाहिए और एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए चाहिए. स्पीड बढ़ाने वाला जो एक्सलेशन है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सलेशन, टेंजेंशियल रिटार्डेशन. इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है या कम होती जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी डायरेक्शन में उसके अपोजिट है. दूसरा जो एक्सलेशन होना चाहिए एट एवरी पॉइंट, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन. इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन. दो तरह के एक्सलेशन होंगे किसी भी बॉडी में व्हेन इट इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में कहीं आएगा. इसलिए दो तरह के एक्सलेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है. टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल. जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो केवल सेंट्रीपिटल. Now your chapter is completed. Chapter number 1 already. So कोई अभी न्यूमेरिकल्स नहीं है for this particular topic. बट जब हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, then we will do it. Right? चलो ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर खत्म हो गया. Tomorrow you have a test. From this chapter. सर सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे ना? सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? ओके. बुक में है आपके न्यूमेरिकल? फॉर्मूलाज क्यों पढ़े? बस थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए यार, ज्यादा पढ़ना गलत बात थोड़ी होती है. हम यूज करेंगे आगे उसको, डोंट वरी. वो आगे यूज होंगे बेटा, डोंट वरी. हम थोड़ा ज्यादा ही पढ़ेंगे, हर चैप्टर में हम ज्यादा ही पढ़ेंगे, बुक्स ज्यादा मतलब. ठीक है, चलो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आपकी केमिस्ट्री क्लास भी. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. टुमारो कल के टेस्ट का टाइम बता दो मुझे. मैम पूछ रही थी किस टाइम पे टेस्ट रखना है. व्हाट टाइम कैन वी हैव टेस्ट? सर आप ही बता दो. सर हमारी नॉर्मल फिजिक्स क्लास में टेस्ट नहीं होगा. नॉर्मल क्लास का टाइम क्यों वेस्ट करना है यार, उसी में देना चाहती हूँ. एक सेकंड, तो सर हम कल 4 बजे फ्री होंगे, फिर टेस्ट कब देंगे? 4 बजे के बाद क्या प्रॉब्लम है? सर 10 बजे रख दो फिर टेस्ट. या उस पहले रख दो, फ्रेश माइंड से पेपर देंगे, उसके बाद क्लासेस अटेंड करेंगे. अच्छा चलो फिर क्लास में दे देना, कोई बात नहीं. सुबह मतलब 7:30? नहीं, 10 to 11 ठीक है. या 10 to 11 भी हो सकता है. करेक्ट. हाँ 10 to 11 इज परफेक्ट टाइम. यस.
10 to 11 ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश. इसके पीछे के क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वो कर लेना. मोस्टली थ्योरेटिकल है, केवल एक ही क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में. Which of the following quantity remains constant in uniform circular motion? Velocity, acceleration, speed, and force. Which is constant? Speed. Is centrifugal force a real force? No, it's a fictitious No. force. Is centrifugal force the reaction of centripetal force? Yes. No, अभी समझाया यार. स्कूल वाली बातें छोड़ो. सर स्कूल में Centrifugal कुछ और force- पढ़ा देते हैं यार, गलत बात है. अरे तो क्या करें, छोड़ो. इस या के बुक का ही क्वेश्चन है. centripetal force the force of reaction of centripetal force? No, दो अलग सिचुएशन में लगता है. सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगता है जब बॉडी खुद रोटेट हो रही हो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता है जब वो किसी रोटेटिंग बॉडी में या किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो. सो ठीक है. ओके यस. बाकी क्वेश्चन सारे मैंने कवर कर लिए हैं. इज इट पॉसिबल टू हैव एक्सेलरेटेड मोशन विदाउट चेंजिंग स्पीड? यस. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ सच मोशन. एग्जांपल द मोशन ऑफ क्लॉक हैंड्स. घड़ी की जो सुइयां होती हैं उनका भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइप पे होता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. और आप लोग शायद ऑफलाइन क्लासेस के लिए बोल रहे थे, विहान एंड जयेश. यस सर. Yes, sir. अभी टिल 30th मैंने आज इसलिए स्टेटस पे भी लगाया था. गवर्नमेंट ने ही अभी मना कर दिया वैसे तो. ऑल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस आर सपोज्ड टू बी क्लोज्ड. मैंने अभी अपने स्टेटस पे भी लगाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं. सर 30 के बाद हम आ सकते हैं. हाँ 30 के बाद आ सकते हैं. वो तो खैर अगर नहीं भी होता तो भी इसलिए कि मेरा एक स्टूडेंट he got positive and he attended the class on Wednesday in the premise. ठीक है. so इसलिए थोड़ा सा as a precautionary measure हमने अभी सैनिटाइज कराया है पूरा इंस्टीट्यूशन. अपना टेस्ट कराया है. I am waiting for the result of the test and don't want anybody else to be contaminated. ठीक है. तो जहाँ इतना 1 साल सही, वहाँ 2 हफ्ते और सही. समझ में आएगा अगर बहुत क्रूशियल हफ्ते हैं. हाँ ये 2 बहुत क्रूशियल हफ्ते हैं, इसलिए आराम से घर पे रिलैक्स करो, एंजॉय करो, पढ़ो, एंजॉय करो, पढ़ो, एंजॉय करो. हाँ ओके सर. सर इन लोगों ने पहले तो टेस्ट रख रखा है, उसके ऊपर इतने सारा होमवर्क दे रहे हैं. हाँ ठीक है. वेरी गुड. अच्छी बात. चलो बाय बाय. बाय. Thank you, sir. Bye.